Good morning, friends. Today we are going to discuss the practical method of finding the resultant of the force system. This is part of your practical and this is part of your submission also. So here is a general force system A, B, C, D, 10 kilonewton, 15 kilonewton, 10 and 20 kilonewton. These are the loads. If I ask you to find the resultant of the force system, we will have summation of Fy equal to R because there is no horizontal force. So summation of Fy is equal to plus 10 minus 15 plus 10 plus 20, that is 25 kilonewton will be the answer. And if I ask you the position, that is the position of the resultant, you will use Varignon's theorem to determine that. So if we want to determine resultant's position from point A, we will have Varignon's theorem. Summation of moment at A equal to R into X. Now R is positive 25, that it will be an upward force. So summation of moment at A equal to R into X. Look at the cursor, said somewhere here resultant is acting. So this will be the distance X. So summation of moment at A will be equal to 15 into 1 minus 15 into 1 plus 10 into 3 plus 20 into 5 equal to R into X, and that's how you can determine the value of X. So we can do the same but by graphical method. So in this case, this is the example, and same example will be there for your practical also. You need to draw the same figure and same solution also. There is no need to write the procedure, just the solution is necessary. For that you will require a graph paper, or in current scenario if graph paper is not available, you can do it on blank page also. So this is the general force system. First step is to draw the force system itself by considering some sort of scale. So in this case here 1 centimeter equal to 0.5 meter is chosen, and accordingly the same figure which is shown but with scale is drawn here. Now once we do that, we need to give the Bose notation. It is very simple. हमें सेक्शंस में डिवाइड करना है फोर्सेस को, यानी A टू B के बीच में ये 10 किलो न्यूटन, B टू C के बीच में ये 15, C टू D के बीच में ये 10, D टू E के बीच में ये 20 किलो न्यूटन. ऐसे चार फोर्सेस हमें शो करने हैं. ये रिजल्टेंट वाला नहीं निकालना है हमें, सिर्फ ये बीम निकालना है हमें. Once we do that, we need to draw the extended lines. तो ये बीम निकाल के ये एक्सटेंडेड लाइंस ड्रॉ करो सब. कर्सर की तरफ ध्यान दो. बीम पूरा निकाला है स्केल के साथ. स्केल सिर्फ लेंथ को चाहिए. सो ये ड्रॉ किया. आफ्टर दैट हमें पोलर डायग्राम ड्रॉ करनी है. सो एक कोई भी रैंडम पॉइंट O चूज करो उसी पेज पे नीचे कहीं तो, या एडजेसेंट साइड्स जहां आपका मन करे. O पॉइंट चूज करने के बाद अब विद द हेल्प ऑफ बोस नोटेशन हमें पोलर डायग्राम ड्रॉ करनी है. सो कहीं भी रैंडम चूज पॉइंट कर लिया O. उससे पहले या उसके बाद भी कर सकते हो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो O के लेफ्ट साइड में. सो एक वर्टिकल लाइन और एक पॉइंट O ऐसा ड्रॉ किया. उसके बाद हमें अब बोस नोटेशन की हेल्प से पॉइंट्स मार्क करने. सो A टू B के बीच में है 10 किलो न्यूटन फोर्स. तो एक जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की है, एक पॉइंट O है, उस वर्टिकल लाइन में कहीं तो एक पॉइंट A चूज करो, कहीं पे भी, इट्स अप टू यू. A पॉइंट हमने सबसे पहले चूज कर लिया. लुक एट द कर्सर. अब A टू बीच में है 10 किलो न्यूटन फोर्स. अब हमने यहाँ पे स्केल चूज किया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलो न्यूटन. ये अपवर्ड फोर्स है. सो A टू B ये हमने दो पॉइंट्स मार्क कर लिए उस वर्टिकल लाइन पे. सो A टू B 10 किलो न्यूटन. सो A टू B होगा 2 सेंटीमीटर्स. उसके बाद B टू C में 15 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है. सो B से 3 सेंटीमीटर डाउनवर्ड हमारा पॉइंट होगा C. सिमिलरली C टू D के बीच में 10 किलो न्यूटन अपवर्ड. सो C से ऊपर 2 सेंटीमीटर D पॉइंट होगा. और D टू E के बीच में है 20 किलो न्यूटन फोर्स. सो D टू E अपवर्ड 4 सेंटीमीटर. दैट्स हाउ दीज पॉइंट्स आर मार्क्ड. A, B, C, D और E. अब एक बार ये पॉइंट्स मार्क कर लिए हमने, तो उन पॉइंट्स को O के साथ हमें कनेक्ट करना है. O पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो आप, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, आपकी मर्जी है. जस्ट एक वर्टिकल लाइन और O पॉइंट हमने मार्क किया, उसके बाद ये ड्रॉ किया. अब उन लाइंस को हमें कनेक्ट करना है ऐसे. वंस वी डू दैट, अब हमें रोलर की हेल्प से या ड्राफ्टर की हेल्प से ये लाइंस ड्रॉ करनी है जो यहाँ पे शो किया है. सबसे पहले O A,
सीक्वेंस से जाना है हमें। ओ ए को ड्रॉ किया हमने पैरेलल लाइन, ये बाहर से जो ए की लाइन है वहां तक सिर्फ ओ टू ए, ठीक है, ओ टू ए, ओरिजिन यहाँ पे गई तो है हमारा, बाहर से हमने जो लाइन ए से एक्सटेंड होके आई है उसको इंटरसेक्ट करने वाली लाइन निकाली पैरेलल टू ओ ए यहाँ पे। उसके बाद ए टू बी ये है, तो ओ टू बी से लाइन हमें ड्रॉ करनी है पैरेलल टू दिस ओ बी। रोलर यहाँ पे रखो, उठाओ, ओ टू बी ये लाइन हमने यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। सिमिलरली ओ टू सी, इससे पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की, ये हर एक दो लाइंस के बीच में हमें वो लाइंस ड्रॉ करनी है। ओ टू सी, सी के नीचे ओ टू सी आएगा, बी के नीचे ओ टू बी आएगा, सो ओ टू सी। सिमिलरली ओ टू डी से पैरेलल लो, ड्रॉ इट ओ टू डी, एंड लास्ट में ओ टू ई। ये ड्रॉ करने के बाद जो फर्स्ट और लास्ट लाइन है उनको एक्सटेंड करो, वो दो लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट होती है दैट इज द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट, दैट इज द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट। फर्स्ट और लास्ट लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होती है उससे एक्सटेंड करो और आप यहाँ पे रिजल्टेंट शो कर सकते हो। अब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये जो वर्टिकल लाइंस में आपको 5 पॉइंट्स मिले हैं उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, ये जो लेंथ है उसको मेजर करो, मल्टीप्लाई करो स्केल से, इट्स अप टू यू व्हाट स्केल यू चूज, वो आपको वैल्यू मिल जाएगी रिजल्टेंट की। अब यही वैल्यूज हमें एनालिटिकल से कंपेयर करनी है जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया। सो आई होप यू विल बी एबल टू ड्रॉ दिस, सेम फिगर ड्रॉ करनी है आपको। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, but it is very simple. I hope you can draw it. Thank you.